Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be fine and good. This is your Oxford Reading Circle book 8 and today I will explain you the unit 14, the monkey's paw. So let's move on. Unit 14, the monkey's paws. First I will read the chapter, then after that I'll summarize the story of this chapter. The monkey's paws. Without, the night was cold and wet, but in the small parlour of Laburnum Villa, the blinds were drawn and fire burned brightly. Father and son were at chess, the former who possessed ideas about the game, involving radical changes, putting his king into such sharp and unnecessary perils that it even provoked comment from the white-haired old lady knitting. Placidly by the fire, hark at the wind, said Mr. White, who, having seen a fatal mistake after it was too late, was amiably desirous of preventing his son from seeing it. "I am listening," said the latter, scratching out his hand. "Check. I should hardly think that he would come tonight," said his father, with his hand paused over the board. "Maid," replied the son, "that's the worst of living so far out," bawled Mr. White, "of all the beastly slashy, out of the way places to live in. This is the worst. The road's torrent. I don't know what people are thinking about. I suppose because only 2 houses in the road are let, they think it does not matter." "Never mind, dear," said his wife, soothingly, "perhaps you will win the next one." Mr. White looked up sharply, just in time to intercept a knowing glance between mother and son. The words died away on his lips, and he did a guilty grin in his thin grey beard. "There is," said Herbert White, as heavy footsteps came toward the door. The old man rose with hospitable haste and, opening the door, was here condoling with the new arrival. Mrs. White curved gently as her husband entered the room, followed by a tall, burly man, beady of eye and rubicund of visage. "Sergeant Major Morris," he said, introducing him. The sergeant major shook hands and, taking the proffered seat by the fire, watched contentedly while his host stood a small. चलिए, यहाँ तक मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि स्टोरी क्या थी। स्टोरी ये थी कि बहुत सर्दी की रात थी, बहुत ठंड थी और फादर और सन जो थे वो गेम खेल रहे थे, चेस, और उनकी जो मदर थी वो उधर निटिंग कर रही थी।
और जब वो चेस खेल रहे थे सन एंड फादर, सो दे वर डिस्कसिंग मैनी इश्यूज़ ऑन द टॉपिक। तो वो काफ़ी इश्यूज़ के ऊपर जो है बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। अपनी टॉपिक जो था उनका गेम का, और इसके अलावा जो भी उनकी बिजनेस को लेकर वो काफ़ी हो रहे थे। एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कि क्या क्या गेम्स के अंदर चेंजिंग आती हैं, किन गेम्स में चेंजिंग आती हैं, और कौन से प्रोवोक्स होते हैं, उन तमाम के बारे में, और नए आइडियाज़ क्या क्या वो अपने बेटे को समझा रहे थे, बता रहे थे गेम्स के बारे में। ये तमाम डिस्कशंस जो थे वो शेयर कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे से। तो फिर क्या होता है, देखा जाता है कि जब बेटा वहाँ पे गेम खेलते वक्त बेटे से मिस्टेक्स होती हैं, तो जो फादर थे वो उनको समझाते हैं कि चेस जब खेलते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखी जाती हैं, और उसी से जो है ये चेस खेला जाता है। और ये बहुत शार्प गेम होता है, और इसके अंदर जो है आपको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, एक नई सोच आपको मिलती है, आप अपने माइंड को डेवलप करते हैं। क्योंकि जब उसको खेलना पड़ता है तो ज़ाहिर है आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा जो है आपको अपना प्यादा कहाँ रखना है। और वो तमाम बातें जो था उनका बेटा बहुत केयरफुली सुन रहा था। तो जब वो हारने लगा तो उसकी मदर जो है वो उन्हें होल्ड करती हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप हार गए हो, एक उसे कॉन्फिडेंस दे रही होती हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप हार गए हो तो नेक्स्ट गेम जब आप खेलोगे उसमें आप जीत जाओगे। तो इस तरीके से उसे डिसअपॉइंट होने से रोकती हैं, और उसके अंदर जो है गेम की लगन पैदा करती हैं कि आप इस गेम को सीखो, समझो, और नेक्स्ट टाइम जब आप खेलोगे तो वो जीत जाओगे। सो लेट्स मूव ऑन दी अदर टॉपिक। Copper kettle on the fire. At the third glass, he began to talk the little family circle, regarding with eager interest this visitor from distant parts, as he spoke of wild scene of wars and plagues and strange people. 21 years of it, said Mr. White, nodding at his wife and son. When he went away, he was a youth in the warehouse. Look at him. I would like to travel myself, just to look round a bit, you know. Better where you are, said the sergeant major, shaking his head. I should like to see those old temples and fakirs and jugglers, said the old man. What was that you started telling me the other day about a monkey's paws or something, Morris? Nothing, said the soldier hastily. Monkey's paws, said Mrs. White curiously. Well, it's just a bit of magic, perhaps, said the sergeant major offendedly. His three listeners leaned forward eagerly to look at said the sergeant major. It's just an ordinary little paw, right to a mummy. He took something out of his pocket and proffered it. Mrs. White drew back with a grimace, but her son, taking it, examined it curiously. And what is there special about it? Mrs. White, as he took it from his son, and having examined it, placed it upon the table. It had a spell put on by an old fakir, said the sergeant major. He wanted to show that those who interfered with fate
did so. तो उन्होंने जो है इस पेज के ऊपर बताया कि थर्ड क्लास पीते हुए उन्होंने बात की अपनी फैमिली सर्कल के बारे में कि उन्होंने कहा कि इन्हें इंटरेस्ट इतना था कि अगर हम बात करें उन प्लग्यूज और स्ट्रेंज पीपल के बारे में जो कि इस प्लग्यू बीमारी के अंदर मुब्तला थे, वो अजनबी लोग थे, उन्हें वो पहले नहीं जानते थे, उन लोगों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता था और उनकी जो भी एक्टिविटी होती थी वो बहुत अजीब लगती थी। तो उनकी फादर की ये बातें सुनकर जो है उनकी वाइफ और बेटा सर हिलाने लगते हुए वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता था। तो उनके फादर ने बताया कि उन्होंने ट्रैवल किया था और इस बात को जो है 21 ईयर्स हो चुके हैं कि 21 साल पहले जब वो ट्रैवल करते थे तो उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया और उन्होंने देखा कि यहाँ पर प्लग्यू के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। और उस ज़माने के अंदर जो वहाँ के टेम्पल्स वगैरह होते थे और वहाँ के जो फ़कीर होते थे या जो भी जगलर्स वगैरह होते थे जो अपना करतब वगैरह दिखाते हैं और करतब वगैरह जो दिखाते हैं तो वो अपना काम अच्छे से निभाते थे, करते थे। अब वो मंकीज़ को जो है वो क्या करते थे, ट्रिक्स देते थे, समझाते थे, तो जो वो बोलते थे मंकी वही परफॉर्म कर कर उनको दिखाता था। तो वहाँ पर जो है अगर मंकी को कहा जाता कि सिपाही किस तरीके से करता है तो वो मंकी जो है वो सिपाही की एक्टिविटी करके बताता या उसकी एक्शन उसको करके बताता था। और इसके अलावा जो भी जादुई ट्रिक्स जो थी वो समझाए जाते थे। तो वहाँ की जो मेजर थे वो अक्सर बताते थे कि 3 चीज़ें जो हैं हमेशा याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले कुछ भी अगर आप बोल रहे हैं तो पहले सोच समझ के बोलें और अपने इर्द गिर्द देख कर बात की जाए। और फिर वो जो है बच्चा उनका जो बेटा था वो अपनी मम्मा की तरफ देखता है कि मम्मी जो है वो खामोश है, चुप हैं। तो फिर वो कहते हैं मिस्टर वाइट क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? तो उन्होंने दिलचस्पी से कहा कि जी हाँ, वो इत्तेफाक करते हैं कि पहले दौर के अंदर जो है मंकीज़ को इसी तरीके से ट्रिक्स दी जाती थी और इतने एक्सपर्ट वो मंकीज़ होते थे कि फ़ौरन वो एक्टिविटी दिखा देते थे कि जो भी उनका ऑनर उनको बोल रहा है कि ये बनकर दिखाओ या वो बनकर दिखाओ तो वो उसी तरीके से उनको डील करता था। To their sorrow, he put a spell on it so that 3 separate men could each have 3 wishes from it. Well, why don't you have 3, sir? Said Herbert White cleverly. I have said the soldiers quietly, and his blotchy face within, and that you really have the 3 wishes granted us, Mrs. White. I did, said the sergeant major. And has anybody else wished? Persisted the old lady. The first man and his 3 wishes, yes, was the reply. I don't know what the first 2 were, but the third was for death. That's how got the paw. His tone was so grave that a hush fell upon the group. If you have had your 3 wishes, it's no good to you now. Then Morris, said the old man at last, what do you keep it for? The soldier shook his head. Fancy, I suppose. He said slowly, I did have some idea of selling it, but I think I will. It has caused enough mischief already. Besides, people think it's a fairy tale. If you could have another 3 wishes, said the old man, eyeing him keenly,
Would you have them? I don't know, said the other. I don't know. He took the paw and suddenly threw it upon the fire. White, with a slight cry, stooped down and snatched it off. Better let it burn, said the soldier solemnly. If you don't want it, Morris, said the other, give it to me. I won't, said his friend doggedly. I threw it on the fire. If you keep it, don't blame me for what happens. Pitch it on the fire again, like a sensible man. The other shook his head and examined his new position closely. How do you do it? He required. Hold it up in your right hand and wish aloud, said the sergeant major, but I warn you of the consequences. Sound like the urban nights, said Mrs. White as she rose and began to set the supper. Don't you think you might wish for 4 pairs of hands for me? Her husband drew the talisman from his pocket, and then all three burst into laughter as the sergeant major, with a look of alarm on his face, caught him by the arm. If you must wish, he said gruffly, wish for something sensible. Mr. White dropped it back in his pocket and mentioned his friend to the table. In the business of supper, the talisman was partly forgotten, and afterward the three sat listening to a second installment of the soldier's adventures before he left to catch the last train. Did you give him anything for it, father? Inquired Mrs. White as the door closed behind their guest. A trifle, said he, colouring slightly. He didn't want it, but I made him take it, and he pressed me again to throw it away. Likely, said Herbert with pretended horror. Why, we are going to be rich and famous and happy. Wish to be an emperor, father, to begin with, then you can't be handpecked. He darted round the table, pursued by the malignant Mrs. White. Mr. White took the paw from his pocket and eyed it doubtfully. I don't know what to wish for, he said slowly. It seems to me I have got all I want. If you only cleared the house, you would be quite happy, wouldn't you? Said Herbert. Well, wish for £200 then, that all just to do it. His father, smiling shamefacedly at his own credulity, held up the talisman as his son, with a solemn face, somewhat moved by a wink at his mother, sat down at the piano and struck a few impressive chords. I wish for £200, said the old man distinctly. A fine crash from the piano agreed. Greeted the words, interrupted by a shuddering cry from the old man. His wife and his son ran toward him. It moved, he cried with a glance of disgust at the object as it lay on the floor. As I wished, it twisted in my hand like a snake. Well, I don't see the money, said his son as he picked it up and placed it on the table.
It must have been your fancy father, said his wife, regarding him anxiously. He shook his head. Never mind, though there is no harm done, but it did give me a shock. They sat down by the fire again. Outside, the wind was higher than ever. A silence settled upon all three, which lasted until the old couple rose to retire for the night. I accept you will find the cash tied up in a big bag in the middle of your bed, he said Herbert as he bade them good night. He sat alone in the darkness, gazing at the dying fire for a while, and then he too went to bed. So now students, now I will summarize the story of this. So in this part, it is the first part of the monkey's paws, and in this part there is three character of father, mother and son. Father and son both are playing the game chess, and during the playing game they were talking about the changes of the game and ideas, and they were talking about the other suggestions of the games, that how to play. So and they were discuss about the life stories of their which they lead. His father telling to his son about the monkey paw, that that was the magic paw, and he said to his son that if he has any wishes, that paw will be completed. So he has to clear full about 3 wishes, because the paw complete just 3 wishes, and third wish goes to death. So he was very careful what he should be wished from the paw. So her mother said he should wish to get some money. तो उसकी मदर जो है वो बोलती हैं कि उसे पैसे मांगने चाहिए या अपनी जो भी विश है वो मांग लेनी चाहिए, मगर उसके फादर ने कहा कि इससे जो है आप 3 विशें जो है पूरी कर सकते हो, उसके बाद जो है वो डेथ होती है, कि अगर आपने शुरू की फर्स्ट 2 विशेस जो है अपनी मांग ली हैं, तो थर्ड जो होती है वो डेथ होती है। ये उसकी ट्रेजेडी थी उस पॉ की। और एज आप लोग पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि उसके फादर के हाथ में जो है वो पॉ है, मंकी पॉ। तो ये एक जादुई पॉ था। तो उनके फादर ने कहा कि इसकी ये खासियत है कि आपको जो भी विश मांगनी है ये फ़ौरन कंप्लीट कर देता है, मगर 2 विशें कंप्लीट करने के बाद तीसरी जो विश होती है वो जानलेवा होती है, कि उसको अपनी जान देनी पड़ती है। इसी तरीके से जो है इनके फादर अपनी स्टोरी बताते हैं कि जब वो अरबियन नाइट्स के बारे में, कि अरबियन नाइट्स में जो थे वहाँ पर एक पर्सन थे, तो उनके हाथ में जो है इन्होंने ये पॉ देखा था। तो फिर वहाँ पर जो है इन्होंने देखा कि इसके जो पेयर्स हैं वो विश जो मांग रहे हैं वो पेयर्स में मांग रहे हैं। पेयर्स से मुराद ये कि 1 and 2 और 3 and 4, तो इस तरीके से वो पेयर्स के अंदर विश मांग रहे हैं। मगर उसके फादर ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो उनके जो फ्रेंड हैं इनके फादर के, जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में नज़र आता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है ये तिलिस्मैन कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालकर देखा कि उनकी जेब में क्या है,
उन्होंने देखा कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने विश मांगी कि मेरी जेब के अंदर जो है कुछ पैसे आ जाएं ताकि वो देख सके कि ये जो पॉ है उनकी विशों को कंप्लीट करता है या नहीं करता। तो ये सब जो बातें थी वो उन्होंने अपने रात के खाने के बाद डिस्कस करना शुरू कर दी। और उनका जो लहजा था, या ये समझ लें कि उन लोगों में ये इत्तेफाक था कि वो सब जो है अपनी अपनी विषयों को बताने लग गए और कंप्लीट करने लग गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो थी उन लोगों की हंसी मजाक चलती रही और वो उस पॉ के बारे में डिस्कस करते गए। तो इतने में ही अचानक उनके घर पर गेस्ट आ जाते हैं, और गेस्ट जब आते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि अब जो गेस्ट आए हैं और इनकी जो विश है ये पॉ से वो मांग रहे हैं कि अब क्या करें। तो वो अपनी गेस्ट को बिठाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, मगर उनको ये होता है कि हमारे जो गेस्ट हैं वो जल्दी यहाँ से जा सकें ताकि वो खुश खुश जा सकें उनकी गेस्ट, ताकि वो अपनी आराम से जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें कि नेक्स्ट टाइम जब अगर उनकी कोई गेस्ट आए तो वो उन लोगों को जो इनके अंदर चेंजिंग नज़र आए कि ये चीज़ें या पैसा वगैरह इन लोगों के पास कैसे आया। तो वहाँ उनके जो फ्रेंड थे, जो सोल्जर्स, वो ये बता रहे थे कि हमें ऐसा करना चाहिए, इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है यहाँ पर हमें चीज़ें मांगनी चाहिए और हमें जो है फिर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करके यहाँ से चले जाना चाहिए बाय ट्रेन। तो उसने कहा ये तो बहुत ही हॉरर हो जाएगा कि अगर हम 2 विशें मांग लेते हैं और अगर हमें किसी और विश की भी ज़रूरत पड़ी या बाद में किसी और प्रॉब्लम में आ गए और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम कैसे पूरा करेंगे। तो उसने कहा कि इसमें तो सिर्फ 3 ही विषय पूरी कर सकते हैं और इस 3 की विषय ये है कि 2 सिर्फ विषय पूरी होंगी और 3rd के अंदर तो डेथ हो जाती है। तो ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं हम 200 पाउंड्स जो हैं अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं कि 200 पाउंड्स हमें मिल जाएं, और 200 पाउंड्स जब हमें मिलते हैं तो हम इससे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे। तो वहाँ पर जो है इसके फादर शर्माते हुए कहते हैं कि बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि तुमने कितनी छोटी डिमांड की है, तुम्हें चाहिए कि इससे कोई बड़ा हमें अमाउंट लेना चाहिए या हमें अपनी कोई बड़ी ख्वाहिश को मनवाना चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं, पियानो की तरफ जाते हैं, पियानो बजाते हुए अपनी सोचते हैं कि हमें 200 पाउंड्स के बारे में कि क्या करना चाहिए, हमें आया वही लेना चाहिए। तो उनकी गपशप हो ही रही थी, तो उसमें जो है उनकी वाइफ जो है वो इंटरप्ट करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, उनको रोकती हैं और उन्हें बताती हैं कि ऐसा करें कि आप लोग जो है इस जगह से किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाएं और फ़िलहाल आप लोगों की जो आवाज़ें हैं वो गेस्ट तक ना पहुँचें। ऐसा करें कि आप लोग दूसरी फ्लोर के ऊपर जाकर ये बातें करें और ये कोशिश मांगें कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट होकर किसी और जगह के ऊपर आप लोग वो करें। मगर उन्होंने कहा कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम ख़जाना मांग लें। तो उनकी वाइफ ने कहा अगर ख़जाना आप मांगते हैं तो ज़ाहिर है उसके साथ आपको स्नेक भी मिलते हैं, कि ख़जाने का जो सांप है वो कैसे आप हटाएंगे। और ख़जाना अगर हम जमा करके रखते भी हैं तो उनके ऊपर काफ़ी सांपों का बसेरा हो जाता है, तो ये हम नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि हम हमारे पास 2 विषय जो हैं वो हम कपल ऑफ नाइट के अंदर अपनी मांग लेंगे, अपनी कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम सोचते हैं कि हमें कैसे ये रात गुजारनी है। तो ये रात जो है हम अपनी सोच में गुजारते हैं कि हमें क्या क्या मांगने हैं और वो हम लिस्ट तैयार करते हैं और उसी के अंदर जो है हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो 2 ख्वाहिश के अंदर पूरी हो जाएं, कि तमाम लिस्टें चाहे वो हम उसके अंदर उसको बता दें ताकि हमारी जो विश है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हमें इस पॉ का क्या करना है और हम कोशिश करेंगे कि हम 1 बाय 1 अपनी विशों को कंप्लीट करें, क्योंकि ये पॉ एक इंसान की 2 विशों को पूरी करता है। अगर एक ही इंसान ने तीसरी विश भी मांगी तो वो उसकी जान लेता है। तो हम ऐसा करेंगे, हम लिस्ट बनाते हैं और 1 बाय 1 अपनी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। इस तरीके से हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी और विशेस जो है वो जो 2 विशेस का था वो भी हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स
ये था मंकी पॉज का फर्स्ट पार्ट जो कि एक्सप्लेन हो चुका है। सो इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट जो है आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। Student, it is the second part of this lesson. The next morning at breakfast, he laughed at his fears. There was an air of prosaic wholesomeness about the room which it had lacked on the previous night, and the dirty, shriveled little paw was placed on the sideboard with a carelessness which betokened no great belief in his virtues. I suppose all old soldiers are the same, said Mrs. White. The idea of our listening to such nonsense! How could wishes be granted in these days? And if they could, how could £200 hurt you, father? Might drop on his head from the sky, said the fearless Herbert Morris. Said the things happen so naturally, said his father, that you might, if you so wished, attribute it to Constantine's. Well done, break into the money before I come back, said Herbert as he rose from the table. I am afraid I'll turn you into a mean man, and we shall have to disown you. His mother laughed, and following him to the door, watched him down the road, and returning to the breakfast table was very happy at the expense of her husband's credulity. All of wishes did not prevent her from scurrying to the door at the postman's knock to find only that the post had brought a tailor's bill. Herbert will have some more of his funny remarks. I expect when he comes home, he said as they sat at dinner. I dare say, said Mr. White, but the thing moved in my hand, that I'll be swear to. His wife made to reply she was watching the mysterious movements of a man outside. 3 times he paused at the gate. Then, with sudden resolution, he flung it open and walked up the path. Mrs. White brought the stranger, who seemed ill at ease, into the room. He gazed at her furtively. She then waited patiently for him to broach his business. I was asked to call, he said at last. I come from Ma and Megan's. Is anything the matter? You asked breathlessly. Has anything happened to Herbert? What is it? What is it? Her husband interposed. Dear three, mother, he said hastily, sit down and don't jump to the conclusion. You have not brought bad news, I am sure, sir. What's that? Cried the old man, starting up. It's Herbert. It's Herbert. She ran to the door, but her husband, catching her by the arm, held her tightly. What are you going to do? He whispered hoarsely. It is my boy. It's Herbert, she cried, struggling. I forgot it was 2 miles away. What are you holding me for? Let's go. I must open the door. For God's sake, don't let it in, cried he told man, trembling. You are afraid of your own son, she tried, struggling. Let me go. Herbert, I'm going. There was another knock. The old woman broke free and ran from the room. Her husband called after her as she hurried downstairs. He heard the chain rattle.
back and the bottom bolt drawn stiffly from the socket. Then the old woman's voice, strained and painting. The bolt, she cried loudly, come down. But her husband was on his hands and knees groping wildly on the floor in search of the paw. If he could only find it before the thing outside got in. Yet more knocks reverberated through the house, and he heard the scraping of a chair as his wife put it down in the passage against the door. He heard the cracking on the bolt as it came slowly back, and at the same moment he found the monkey's paw and frantically breathed his third and last wish. The knocking ceased suddenly. He heard the chair drawn back and the door open. A long loud wail of disappointment and misery from his wife gave him courage to run down to her side and then to the gate beyond. The street lamp flickering opposite shone on a quiet and deserted road. So in this second part वो अपना घर शिफ्ट कर जाते हैं और उन्होंने अपनी विश को पूरा करते हुए या विश मांगते हैं कि हमें जो है एक नया घर मिल जाए और वहाँ जाकर हम रहें। तो वो लोग अपने नए घर के अंदर शिफ्ट होते हैं और वहाँ पर जो है ये जाकर कहते हैं, सोचते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि अब अपनी थर्ड विश से इसको कंप्लीट करते हैं। तो थर्ड विश जो थी उनकी वाइफ कहती है कि आप ऐसा करें कि जो घर हमने लिया है हम वहीं जाकर अपनी थर्ड विश को कंप्लीट करते हैं। तो ये अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ जाकर जो है अपने डोर के सामने ये लैंप लगाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ रहा है। जब ये लोग अपनी डिस्कशन कर रहे होते हैं, अपनी विशेस मांग रहे होते हैं, तो उसी दरमियान जो है दरवाज़े पर दस्तक होती है और फिर वो घबरा जाते हैं कि अब इस वक्त कौन आ गया। तो फिर वो उनकी वाइफ जो है वो दरवाज़े पर जाती हैं और वो देखती हैं कि देखूं ज़रा कौन आया है। तो वो ये देखती हैं कि बाय पोस्ट जो है वो टेलर का बिल आया है कि उन्हें वो बिल पे करना है। तो उस वक्त जब इनकी डिस्कशन चल रही होती है तो वो एक दूसरे से कसम लेते हैं कि इसके बारे में आप लोग किसी से डिस्कस नहीं करेंगे और जब भी इस पॉप को कोई भी विश मांगेगा तो थर्ड विश के बाद जो है वो उसे ख़त्म कर दे, उसके बाद विश ना मांगे, वरना फिर वो ये पॉ जो है अपने जादू से उसको ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर जो है वो एक दूसरे से कसम लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा ही होगा। तो इनके दरमियान जो गुफ्तगू चल रही होती है तो उनकी वाइफ उनको इंटरप्ट करते हुए कहती हैं कि हमें जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए और अपना नए घर में विश करनी चाहिए, नए घर की। तो वहाँ जाके अपने नए घर को डेकोरेट वगैरह करते हैं और वहीं जाकर अपनी आखिरी जो विश होगी वो वहीं जाकर हम मांगेंगे। तो जो उनकी आखिरी विश होती है वो यही मांगते हैं कि अब जो है उनके पास पैसे हों और उनका जो घर है वो बिल्कुल जो है सुकून आरामदा हो और वहाँ से जो है अपना ज़िंदगी वो स्टार्ट कर सकें और ख़ूबसूरत सा इनका घर हो और वहाँ से जो है इन अपना घर तलाश, जब ये इनको मिल जाता है घर तो वो लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब वो पहली नाइट उनकी उस घर में होती है, देयर वॉज द फर्स्ट नाइट ऑफ that family who was spending her first night in that new house. So they were horror, they getting the horror what they is going on, but they were confused. They think they have should be quickly stabbed. उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है वो ये जो विश ली है न्यू हाउस की वो क्विक स्टेप लिया है, तो ऐसा ना हो कि कोई मसला या मुसीबत उनके सामने आ जाए। तो यही रेजिग्नेशन जो था उनके सामने था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और उनकी जो वाइफ थी वो अपनी विंडो पे खड़ी होकर सोच रही थी कि
कुछ गलत तो नहीं किया कि इतनी जल्दी विशेस इन लोगों ने मांग ली हैं और अब आगे ना जाने क्या होना है, ऐसा ना हो कि कोई तबाही लोगों के साथ हो जाए। तो उनके हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि आई थिंक यू हैव गॉन मैड, कि आप पागल हो गई हैं जो इस तरीके का सोच रहे हो। अच्छा सोचिए और दिन की जो है अच्छी शुरुआत होगी अगर आप अच्छा सोचेंगे। तो उन्हें कहा कि वेल कि वी विल विश अगेन एंड हम जो लास्ट विश होगी हम उसमें अपनी ज़िंदगी की विश मांग लेते हैं कि हम जो है ज़िंदा रहें, क्योंकि एज पॉ कि उस पॉ के मुताबिक जो है उनकी लास्ट विश जो है वो डेथ होती है, मगर वो डेथ की बजाय वो अपनी विश कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की विश मांग लेते हैं कि हमारी जो थर्ड विश है वो हमारी ज़िंदगी है, कि पॉ जो है हमारी ज़िंदगी को ख़त्म ना करे। सो उसके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी यही शर्त और रूल्स हैं इस पॉ के कि आपकी अगर 3 विशेस कंप्लीट हो जाती हैं देन यू हैव टू बी 4th वन इज़ योर डेथ। तो उनके हस्बैंड उनसे कहते हैं कि यू शुड बी स्लीप नाउ, कि आप सो जाना चाहिए, आप बहुत डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, तो अब हमें आराम करना चाहिए और कल की कल सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है। और जो लिखा होगा हमारे साथ वही होना है। तो वो काफ़ी घबराए हुए थे, काफ़ी डरे हुए थे कि ऐसा क्या होगा अब हमारे साथ। उनकी वाइफ जो है उनसे कहते हैं कि देखें अब हमारी जो विश है वो कंप्लीट हो गई हैं, अब हम ऐसा करते हैं इस पॉ को जो है हमें कहीं छुपा देना चाहिए ताकि ये किसी और के हाथ न लगे और उसे जो है इसकी रूल्स का नहीं मालूम होगा कि यहाँ पर जो है इसका रूल्स 3 विशेस कंप्लीट करने के बाद ये 4th में जो है डेथ लेता है। तो बजाय इससे कि किसी और को नुकसान पहुँचे हमें इसे छुपा देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो विषय हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, हमें घर भी मिल चुका है, पैसे भी मिल चुके हैं, हम लोग सब खुश हैं। अब हमें अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करनी, कोई ख्वाहिश नहीं रहती, तो अब हमें इसे छुपा देना चाहिए। तो यही बातें सुनते हुए उनके जो हस्बैंड हैं वो घड़ी की तरफ देखते हैं। तो उनकी वाइफ उनसे पूछती हैं आप क्या घड़ी की तरफ देख रहे हैं, टिक टॉक वो कर रहे हैं। So students, it is the story of this chapter. So see you again later. Till then, bye. Take care.